Hello friends, welcome back. Today we are going to start a new topic that is the ideal gas equation. Guys, इससे पहले आप लोगों ने पहले ही जो है ideal gas equation जो है वो you are already aware about that what that is. In the ideal gas equation, I am here directly writing what the ideal gas equation is. PV is equal to the nRT. So अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो P है that is the pressure, V is the volume, N number of moles, R is the gas constant. Okay. Then T is the temperature. But here I am writing R bar. I do consider that this R bar is a universal gas constant. Okay. And if you see here, I have wrote the units. When we are taking the this universal gas constant in terms of the kilojoule per kilomole Kelvin में जब हम ये लेते हैं, at that time we have to consider temperature in Kelvin, number of moles in terms of the किलोमोल्स में, ठीक, एंड वॉल्यूम क्यूबिक मीटर्स में और प्रेशर किलो पास्कल्स में, तब जाके हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट जो है ये आएगा. एंड ऑल्सो वी शुड कंसिडर वी शुड कीप दिस वेरी थिंग इन द माइंड दैट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है इसका वैल्यू होता है 8.314. ओके, kilojoules per kilomole per Kelvin. Sometimes you can also see its units as joules per mole Kelvin में भी हम इसको ले, इस वजह से जो है you are not going to change its value. ठीक है, इसका वैल्यू भी वही रहेगा और यूनिट्स चेंज होंगे. बट हियर व्हाट यू हैव टू सी दैट फॉर द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि हम आर बार से लिखते हैं, वहां पे उस समय प्रेशर लेना है पास्कल्स में, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा इन क्यूबिक मीटर्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मोल्स में ही लेना है, और टेम्परेचर केल्विन में, तब जाके हमें जो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो आएगा जूल्स पर मोल में. ठीक है, और अगर हमने किलो जूल्स पर किलो मोल में लेना है तब उस समय हमने ये लेना है किलो पास्कल्स में और ये लेना है किलो मोल्स में. दिस इज ओनली द चेंज. ठीक है, बाकी वैल्यू जो है दोनों का सेम ही रहेगा. सो आइडियल गैस इक्वेशन जो है दैट इज द पीवी इज इक्वल टू द एन आर बार, दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर बार इनटू टी. टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर हम देखेंगे, और जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है दैट इज द आर बार, दैट्स इक्वल टू द 8.314. और ये हम इसके जो यूनिट्स हैं वो लेते हैं किलो जूल पर किलो मोल में, पर किलो मोल केल्विन में. इसको हम इन टर्म्स ऑफ जूल्स पर मोल केल्विन में भी ले सकते हैं, provided we change the units of the pressure and the number of the moles. Okay, now moving ahead, uh, here I am again writing the ideal gas equation as this, that is the PV is equal to the nRT, और where R bar जो है वो आपको पता है that's the universal gas constant. Okay, now moving ahead, अगर हम ये भी जानते हैं जो number of moles हैं that's equal to the mass divided by mass of the ideal gas. Say for example, here is a gas, it has some mass. When we are going to calculate the concentration यानी कि n is equal या molarity, that is the mass divided by molecular mass, है कि नहीं, तब जाके हमने ये पता चलेगा कि इसमें जो है कितने ये नंबर ऑफ मोल्स में जो है हमने इसकी कंसंट्रेशन पता करनी है. ठीक, सो अगर हम ये करें, जो ये n है इसको हम लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडियल गैस. ठीक है, नाउ if I divide universal constant gas constant by this molecular mass, then it becomes the characteristic gas constant, and we write that characteristic gas equation by the R. So keep this very thing in the mind. R bar is the universal gas constant and simply the R is the characteristic gas constant. Okay, और इसका वैल्यू जो है ये वैरी करता है, ये भी keep this very thing in the mind. Universal gas constant, it is same for all the gases, for all ideal gases, but characteristic gas constant, it varies from gas to gas, varies from ideal gas to ideal gas, और ये depend करता है उसके molecular mass पे. If you have to find out the characteristic gas constant, you have to simply divide the universal gas constant by the molecular mass of that particular gas. ठीक है, that you are considering, जिस पे भी कि आप लोग जो हैं यूनिवर्सल ये आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो. ओके गाइस, नाउ मूविंग अहेड, so what you are writing actually, this is the R bar divided by M,
it becomes the R, that is the characteristic gas constant. So बचेगा क्या यहाँ पे, that is the PV is equal to mRT. Okay, now जो M है, M is the mass of that ideal gas. ठीक है guys. Now see what we are going to do. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, when you are dividing the gas, now when you are asked to what is the unit of this characteristic gas constant, we take it in terms of the kilojoules per kg Kelvin. Okay, और if अगर हमने जो है क्या कहते हैं इसको पास्कल्स में ही लिया, ठीक है, या मोल्स वहां पे लिए, तब यहाँ पे जूल्स पर केजी केल्विन में आएगा. ओके गाइस, मूविंग अहेड. So now see, okay, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये PV is equal to mRT. Now if I take this m on this side, you are bringing this m on this side, then it becomes the PV by m. What is V by m? V by m is the, when you divide the volume by the mass, then it becomes the specific volume. Okay, और ये भी keep this very thing in mind, that mass divided by volume is density. So density is actually the 1 by specific volume. Density is the reciprocal of the specific volume. So here we ideal gas equation जो है वो क्या बनेगी हमें, that will be PV is equal to the P into specific volume is equal to RT, where R is the characteristic gas constant. I hope कि ये आपको clear हो गया होगा. Now moving ahead, अगर आप ये characteristic gas equation specific volume इस side में लेके जाएं तो क्या बनेगा यहाँ पे, P is equal to R by specific volume into T, और 1 by specific volume किसके बराबर होता है, that is the rho के बराबर, density के बराबर. Then we can say that जो ideal gas equation है for a particular gas, it can be also written as, that is the P into rho into RT. Okay, now moving ahead, next topic here that we have is the calculation or calculating the work interaction. हमने work निकालनी है in the different process. We saw the different processes. We saw the adiabatic process, we saw the isothermal process, we saw the isobaric, isochoric, we saw different. ठीक है, इससे पहले जो हमने किया जो work interaction, finding the work interaction in the previous lecture, ठीक है, वो हमने actually निकालना था network. ठीक है, नेटवर्क देयर वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे, जब मैंने आपको वो एग्जांपल दी, हियर वी हैव अ सिस्टम दैट कंटेन्स सम गैस, ठीक है, इसमें यहां से हमने कोई एक इलेक्ट्रिकल वर्क दी जिसकी वजह से ये हीट अप हो गया. ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क, इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क इसने की और इसकी वजह से जो है ये हीट अप हो गया, इसकी इंटरनल एनर्जी, और फिर उसकी वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गई. तो हमें उस सिस्टम में दो वर्क्स थी, एक तो थी इलेक्ट्रिकल वर्क, दूसरी थी डिस्प्लेसमेंट वर्क. ओके, अब ये मैंने ये डिटरमाइन करना था कि उसके साइन कन्वेंशंस क्या थे और नेटवर्क कैसे आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक, और वो एक साइक्लिक प्रोसेस थी. ठीक है, जिसमें कि हमने देखा कि फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक जो पॉइंट फंक्शन थी उसका जो साइक्लिक इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू 0, जैसे कि जिसमें कि हमने इंटरनल एनर्जी का जिक्र किया था. बट फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, कब, जब एक साइक्लिक प्रोसेस हो, और उसमें हमने ये भी देखा नेट हीट, दैट इज द क्यू समेशन ऑफ ऑल द हीट इज क्यू नेट, दैट इज इक्वल टू द नेटवर्क. ठीक, फिर मैंने ये भी कहा कि हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेटवर्क. ठीक, नेटवर्क आपने ये देखनी है कि इट डिपेंड्स अपॉन यू हैव टू सम ऑफ द ऑल द वर्क्स that is either done by the system or that is being done on the system. Now and also you have to take into consideration the sign convention that I already explained you how you are going to take it. ठीक, now moving ahead, here the topic is finding the work interaction in the different processes. now यहाँ पे जो है हमारे पास तो किस किस के लिए हम निकालेंगे, एक तो हम निकालेंगे क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगी वर्क इंटरेक्शन, दूसरा क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस के लिए, दोनों हम देख लेंगे. नाउ सी, we are considering here, we know that the work जो है it's equal to the PdV. ये कौन सा है, that is the, क्योंकि ये है एक what we say that it is displacement work. For the displacement work we see that the P is the integral of the PdV. Here if you are considering the two properties, that pressure graph between the two properties, that is the pressure and the volume. ठीक है, now the system is changing from 1 to 2. ठीक, so when you are asked to find out the work interaction,
of the quasi-static process. ठीक है, for the quasi-static process, as I said, in case of if you are considering the quasi-static process, at that time what you are considering, you are assuming the changes are very small. ठीक है, ठीक है, you are actually changing the parameters, as I already mentioned, you are actually changing the parameters slowly. ठीक, तो यानी कि the small change in parameter, let us say there is a two parameters, that is the pressure and the volume. Now what I am saying, that the pressure and the volume you are going to change it to the small value, ठीक है, but you are keeping there, assuming that the pressure is constant. ठीक, at that time what it becomes, pressure को हम बाहर निकालेंगे and the volume changes to like this. ठीक है, and P is constant. Then हमें ये कौन सा केस बन गया, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट. नाउ सी, अगर मैं मानूं वर्क इज इक्वल टू द प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इफ द बोथ आर चेंजिंग, देन द टोटल वर्क डन विल बी एक्चुअली इक्वल टू द, यहाँ पे ये मान लीजिए ये differentiation of this is a small work done, for the total work done W, it is actually equal to the P dV plus VdP. Okay guys, now what I am saying, अगर हम isobaric process consider करेंगे, at that time pressure will be the constant, so dP will be 0, and at that time V is equal to the P del, W is equal to the P dV. Okay, so the W will be equal to the P dV, dV will be equal to the V2 minus V1. That is a simple thing. But if there is an isochoric process, for an isochoric process, when the dV is 0, when there is no change in volume, then the work will be 0. There will be no displacement work. Now keep this very thing as well in your mind कि for isochoric process displacement work अगर हम मान रहे हैं, displacement work will be the 0. For an isothermal process, what you are going to consider that, but you are you just now see the again work is equal to the integral of the P del V. Okay, now using the ideal gas equation, if this if you are assuming, if you are working on the ideal gas, okay, so what you are going to use this ideal gas equation, that is the PV is equal to the, that is the MR, अगर कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, क्योंकि अब यूनिवर्सल गैस तो आप लगा नहीं रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर गैस पे काम कर रहे हो, देन यू हैव टू कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को ध्यान में रखना है, एंड यू आर टेकिंग इट डाउन. ठीक है, देन इट बिकम्स द P इज इक्वल टू द MRT डिवाइडेड बाय V. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड यू आर सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द P इन द इक्वेशन, देन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द MRT बाय V इनटू dV. ओके, नाउ मूविंग अहेड, m ये भी कांस्टेंट है क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही होगा. अब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर गैस विल बी कांस्टेंट. ठीक है, देन अगेन T जो है हमारा, TB, if it is an isothermal process, here we are considering it as an isothermal process, it means that T is also constant. Keep that. तो आप ये तीनों जो है ये टर्म्स, सॉरी जो MRT हैं, ये आप बाहर निकाल रहे हो, तो अंदर बनेगा इंटीग्रल ऑफ dV by V. जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, then it becomes the ln of V. ठीक, and when you give the values from V1 to V2, ठीक है, upper limit or lower, then it becomes directly, it's obviously it's understandable. तो ये आपको पता ही है. then work done for an isothermal process is equal to MRT into ln of V2 by V1. okay, और also हम ये भी जानते हैं, when, अब यहाँ पे मान लीजिए ये PV is equal to the MRT है. okay, now M भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और T भी कांस्टेंट है, क्योंकि isothermal process, then we can say that PV is equal to constant. okay, so हम लिख सकते हैं then P1 V1 is equal to P2 V2. okay, और वो होगा किसके बराबर, कांस्टेंट. तो यही हमने यहाँ पे लिखा. For an isothermal process, we can also write P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to the constant. So, तो ये भी बन सकता है यहाँ पे P1 इस P2 को नीचे लाओ, then it becomes the P1 by P2 is equal to V2 by V1. इसको यहाँ पे लेके जाओ. ठीक है, then P1 by P2 is equal to V2 by V1. So we can also reform जो है isothermal work done
आइसोथर्मल वर्क इंटरेक्शन किसके बराबर हो सकती है? नाउ सी यहाँ पे देखो, ये पीवी इज इक्वल एम आर टी, तो एम आर टी जो है इसके बदले में मैं लिख सकता हूँ पी वन वी वन इज इक्वल एम आर टी, है कि नहीं? दिस ऑल्सो इक्वल टू द पी टू वी टू इज इक्वल एम आर टी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल पी वन वी वन लॉन ऑफ वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू लॉन ऑफ वी टू बाई वी वन। ओके, in terms of the हम also we can also modify it like this, क्योंकि v2 by v1 जो है हमारे पास that's also equal to the p1 by p2, then you can also modify the work as p1 v1 ln of p1 by p2 is equal to p2 v2 ln of p1 by p2. Now moving ahead, now the fourth is the work done in case of the polytropic process. As I already mentioned, polytropic process में हम क्या mention करते हैं, pv raised power n is equal to the constant. Okay, now here if you look, pv is equal, again you take the work done जो हमारे पास displacement work है, but keep this in the mind, it's a polytropic process, ठीक है? that is the pdv work, तो ये तो पता ही है, ठीक? now moving ahead, when it's a polytropic process then p is equal to c divided by v raised to power n, तो हमें क्या बनेगा, putting the value of the v as an p as a c by v raised to power n, तो ये क्या बनेगा ऐसे c divided by ये इसका इंटीग्रल है, that is simple, और c हम बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। नाउ इंटीग्रेटिंग 1 बाय v रेज पावर n, v रेज पावर n ऊपर जाएगा, ये बनेगा v रेज पावर माइनस n, ठीक है? जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे देन इट बिकम्स v रेज पावर n प्लस माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1, ठीक है गाइस? नाउ taking the integral, अब इसके लिमिट्स दे देते हैं, then it becomes like this, the work done is equal to c into v2 raised to power m minus n plus 1 माइनस v1 जो लोअर लिमिट है माइनस रेज पावर माइनस n प्लस 1। ओके, तो हम इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, डिवाइडेड बाय m minus n plus 1। ओके, नाउ सी मूविंग अहेड, w is equal to c into v2 raised power minus n, अब इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे v2 सीधे, क्योंकि ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बनेगा v1 रेज पावर माइनस n into v1 divided by n minus 1। also for the polytropic process हम लोग लिख सकते हैं like this, p1 p2 v2 raised power n is equal p1 v1 raised power n is equal to c, ठीक है? then I can say that p2 is equal c divided by v2 raised power n is equal to c into v2 raised power n minus n, क्योंकि इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे then p2 can be also written as c into v2 raised power minus n। okay, then you can replace the value of, now see, can I write the value of ये यहाँ पे if you take back, देखो अगर मैं c को वापस लेके जाऊंगा और इस c को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, then can I write like this, c v2 raised power minus n, c v2 raised power minus n, it is equal to the p2, so I can say that then this whole region this becomes the p2 v2, और इसी तरह c v1 raised power minus n is equal to the p1 is also equal to the c into v1 raised power minus n, तो क्या बनेगी ये इक्वेशन यहाँ पे, then it becomes the c और ये जो ये वाला पोर्शन है into ये c, ठीक, ये बनेगा p2, तो लिखा मैंने यहाँ पे p2, और ये c जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा ये वाली रीजन इक्वेशन, ठीक है? तो ये बनेगा p1, तो मैंने लिखा यहाँ पे p1। सिंप्लीफाई करके if you see here I have derived this very equation for a polytropic process, work done is equal to the simply p2 v2 minus p1 v1, okay guys, divided by minus n plus 1, वो तो अपनी जगह पे है। now we can also change, bring some changes, अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बनेगा यहाँ पे n minus 1 नीचे आएगा, ठीक है गाइस, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस निकलेगा कॉमन, ऊपर से भी माइनस निकलेगा कॉमन, एंड वी कैन राइट फॉर वर्क polytropic process p1 v1 minus p2 v2 divided by n minus 1। now for अगर एडियाबैटिक को निकालना है, फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस यू ऑलरेडी नो दैट कि n जो है दैट इज इक्वल टू द गामा, लेटर सी व्हाट द गामा इज, so for the work done for the adiabatic process is equal to p1 v1 minus p2 v2 divided by gamma minus 1 instead of n। okay,
Now, moving ahead, next we are going to see what is the enthalpy. So क्या होती है enthalpy? Enthalpy is actually, ये किसने दी है ये term, इसको explain किया है by the Medler, ठीक है. So we write the enthalpy as the H enthalpy, और ये किसके बराबर होती है? That's actually equal to the enthalpy is the मतलब यूजफुल एनर्जी. मतलब एक सिस्टम है, जब हम इसमें से देखो, इफ यू हैव अ सिस्टम, ठीक, व्हेन यू गिव सम हीट टू इट, वी बेटर नो इट, सम, कीप दिस वेरी थिंग इन माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसकी जो हीट, जो हमने इसको एनर्जी दी है क्यू, ठीक, उस क्यू में से जो हीट है वो इस्तेमाल होगी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, ठीक है, डेल्टा एच चेंज करने में, डेल्टा यू चेंज करने में, ठीक, और कुछ ये वर्क डन भी करेगा, ठीक है. तो दो कामों के लिए यूज होगी, मतलब यानी कि अब ये भी हमने ध्यान में रखना है, कुछ तो इसमें जो हीट है वो लॉस भी होगी ना, ठीक है. सो मतलब ये कि जो हीट हम दे रहे हैं सिस्टम को, दैट इज द टोटल हीट, दैट इज द हीट टोटल गिवन टू द सिस्टम, दैट इज इक्वल टू द जो वो यूज करता है यूजफुल, दैट इज द यूजफुल हीट, ठीक है, दैट इज द क्यू यूजफुल, ठीक, प्लस कुछ जो लॉस होगी, प्लस हीट लॉस, हीट लॉस. नाउ जो हीट लॉस होगी, कीप दैट असाइड, हमने उसके साथ फिलहाल तो कुछ नहीं करना है, बट जो यूजफुल हीट है, जो कि हमने यहां से दे दी, जो हीट हमने दे दी, उसमें जो यूजफुल हीट है, वी कंसिडर दैट हीट एज एन एंथैल्पी, दैट इज डिनोटेड बाय द एच, और कैपिटल एच और स्मॉल एच, ठीक है. तो हमारे पास जो एंथैल्पी है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू दैट इज अ यूजफुल एनर्जी, ठीक है, यूजफुल हीट, ठीक, दैट्स इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी, sum of the change in internal energy and the flow work, or the जो भी जो है वर्क डन वो करता है. नाउ सी, अगर हमने आइडियल गैस इक्वेशन को देखना है, ठीक है, ये अप्लाई करना है, वी नो दैट फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव अ इक्वेशन P, दैट इज स्पेस P into specific volume is equal characteristic gas constant into T, ठीक. So here, now see, now see, the enthalpy है, that is actually the equal to the internal energy plus RT, P into specific volume. Here you see that this is P into specific volume is actually the some work done, ठीक. And also you know that work done किसके बराबर है? Pressure into volume के बराबर, ठीक. And for the ideal gas we write this PV in terms of the P into specific volume, ठीक है, एंड वी कंसीडर दैट वर्क एज अ फ्लो वर्क. तो ये वर्क है और ये इंटरनल एनर्जी चेंज है. नाउ यू आल्सो नो दैट दिस पीवी जो है, दिस इक्वल टू द आरटी, ठीक है, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन है. दिस पी इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इनटू टी. सो हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, ठीक है, और T it is a function of temperature. So I can say that internal energy भी function of temperature ही है. So this whole, अगर हम देखेंगे ये भी function of temperature है, function of T है, और ये भी function of T है, then this whole we can say that for the ideal gas in, equation enthalpy is also the function of temperature, ठीक है. Now moving ahead, अगर हम लोग flow work को नहीं माने, ठीक है, if we are not considering the flow work, now we are considering the constant volume. For the constant volume, it means that there will be no work done. That means there is no flow work, and that at that time delta W, dou W is equal to 0. ये मैंने dou W क्यों लिखा? क्योंकि ये inexact differential है, ठीक है, ये path function है, और यहाँ पे मैंने dou क्यों लिखा? क्योंकि ये heat है, ठीक है. At that time for the constant volume, for an isochoric process you can also consider, here you can write जो आपने heat दी है that is equal to the du, ठीक है, dou क्यों is equal to du, ठीक. ओके. नाउ अगेन फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है, यू कैन आल्सो कंसिडर दैट कांस्टेंट प्रेशर के वक्त दैट इज द एंथैल्पी, दैट इज एच, सम प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम तो चेंज होगा ना, दैट इज इक्वल टू द U1 प्लस P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम 1, ठीक है, U1 के लिए,
और जो एंथैल्पी 2 है दैट इज H2, इट इज इक्वल टू दी U2 प्लस P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू 2। मूविंग अहेड, H2 माइनस H1। नाउ ये भी ध्यान में रखना है आपको, जो ये एंथैल्पी है दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट्स नॉट एन ये हीट हमारे पास है पार्शियल एग्जैक्ट ये इनएग्जैक्ट फंक्शन, ठीक है, वहां पे हम लोग इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही कंसिडर करेंगे, बट एंथैल्पी के एग्जैक्ट एंथैल्पी इज अ पॉइंट फंक्शन, ठीक है। कीप दिस वेरी थिंग इन माइंड, हियर व्हाट यू हैव, इट इज एक्चुअली दिस H1 H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, जब आप ये इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, देन यू गेट U2 माइनस U1 P इंटू V2 माइनस V1। हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम B एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये भी एक एग्जैक्ट पॉइंट फंक्शन है और ये भी पॉइंट फंक्शन है, देन दिस होल इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सो वी हैव द टू इक्वेशंस, ठीक। हियर इफ यू आर सेइंग दिस इज एन एग्जैक्ट, दिस इज एन इक्वेशन फर्स्ट एंथैल्पी के लिए, ठीक है, और क्यों के लिए, when you are considering like this at that time, ठीक, okay, and again you are seeing here this dou q is equal to dh provided, ये कब बनेगा, ये तब की बात है जब हम लोग मानेंगे दिस एक्चुअली द नेट हीट, क्योंकि जो एक तो होती है ग्रास हीट जो हमने दी, क्योंकि उस हीट में कुछ तो हीट वेस्ट हो रही है ना, whether it is an gross heat, whether it is an net heat, heat will be always represented by the dou q, ठीक है, क्योंकि वो एक पाथ फंक्शन है, ठीक, बट फॉर द enthalpy you have to write it as an exact differential is a point function। Now moving ahead, now the next is the considering the free expansion। क्या होता है free expansion, ओके okay। अगर हम मानेंगे there is a system, ठीक है, सिस्टम में एक तो वो insulated है, we can have a closed system like this, it is a rigid, we can have a systems out of the two types, one is the insulated and another is an rigid। if it is an insulated it means that no heat exchange occurs in case of the insulated, क्योंकि insulation तो वही होती है ना, मतलब यानी कि it's a very closed system, there is a no heat exchange। now for the rigid भी हो सकता है system, for that case क्या होगा कि there will be the no change in volume, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। फॉर द इंसुलेटेड सिस्टम dq इज 0, क्योंकि उसको तो ना तो हीट दे सकते हैं ना उससे ले सकते हैं, ठीक है, और when it is rigid as well then it becomes the dou w as equal to the 0, so we can also say that du is also equal to the 0, ठीक है, ठीक। तो हमारे पास एक्चुअली देयर वाज अ सिस्टम, ठीक, इसके अंदर हमने फ्री एक्सपेंशन किया, ठीक है, बट देयर इज अ नो हीट एक्सचेंज, देयर इज अ नो ओवरऑल जो ये सिस्टम है देयर इज अ नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ठीक। जो इसकी जो ओवरऑल हम कह सकते हैं इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होगी ना। नाउ मूविंग अहेड, ओके, नाउ अगर हमारे पास, वेट अ मिनट, ओके, now moving ahead, if it is an ideal gas, अगर हमारे पास एक ideal gas है, ठीक, in case of ideal gas we are considering that the internal energy is here, there it is a function of temperature, du is equal to 0, ठीक है, if du is 0 then change in temperature will also be equal to 0, ठीक, but it's not an isothermal process, but ये हम जानते हैं कि ये अगर free expansion हम कर रहे हैं, ठीक है, it's not an isothermal process। लेट मी टेल यू, यहां पे क्या हम देखते हैं कि नेट चेंज तो 0 होगी,
ठीक है, नेट चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो होगा, बट ये कि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक, इसका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, ठीक, but this doesn't mean that the system has not undergone the change in the temperature. Actually, there was a change in temperature during the process, ठीक, but we are saying that पहले तो इसमें जो है टेम्परेचर फर्स्ट डिक्रीज हो गया, फिर से इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमने जो है T2 जो और T1 बराबर निकले, बट इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे we consider this by the through an probable expansion path and this it is an highly irreversible process, ठीक है, इसको हम मतलब यानी कि इसको कोई पाथ नहीं दे सकते हैं, का नाम नहीं दे सकते, बिकॉज इट्स नॉट रेसिबल, हमें नहीं पता है कि ये कैसे चेंज हो गया, ठीक है। इफ आई मूव बैक, तो मैं एक्चुअली कंसिडर कर रहा था एक फ्री एक्सपेंशन में क्या चेंजेस हो सकती हैं। यू आर एक्चुअली हियर वी हैव अ सिस्टम जिसके एक साइड से है आइडल गैस, एक साइड से है वैक्यूम, ठीक है, ठीक, and this is an overall system and it's an insulated, it's a rigid, there is a no change in volume in the overall system, ठीक है। So but when I am undergoing the ये changing the when it is undergoing the free expansion, तो उसमें क्या होगा कि जो इसकी जो internal energy है वो कुछ इधर चली जाएगी, ठीक है, when it undergoes some free expansion it is doing some work and it when it undergoes some work it means that it is using its internal energy, क्योंकि बाहर से तो कोई energy आ नहीं रही, बट स्टिल we are doing consider as per the law, क्योंकि ये insulated है, ये इसमें ये rigid है, there is no overall change in volume or no overall change in temperature heat, so we can say that there will be by the equation first law of thermodynamics there will be no change in ये internal energy, ठीक। अब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, इट मीन्स दैट कि ये तो उस हिसाब से फिर बन गया आइसोथर्मल प्रोसेस, बट इन एक्चुअल सेंस इट इज नेवर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्यों क्यों क्योंकि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑब्वियसली व्हेन इट एक्सपैंड्स इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम वी आर सेइंग दैट दे विल अगेन ट्राई टू एक्सचेंज द हीट, मान लीजिए इसका टेम्परेचर कम व्हेन इट एक्सपैंड्स, ठीक है, ठीक, इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, आफ्टर सम टाइम दे विल अगेन बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। यहाँ पे अगर हम देखेंगे देन वी विल सी दैट जो है ओवरऑल टेम्परेचर इसका बाहर तो नहीं कुछ भी, ये इंसुलेटेड है, ठीक है, ओवरऑल टेम्परेचर जो है ये हम यहाँ पे जब ये डिफ्यूज हो गया, ये व्हेन इट पास फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, ठीक है, अब इस वजह से थोड़ी हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, इंटरनल एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, बट देन व्हाट वी सा आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर जो है वो फाइनली दैट इज इक्वल टू द इनिशियल टेम्परेचर, बट दिस डजंट मीन दैट थ्रू आउट द प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, और इसमें प्रोबेबल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, और ये भी हम मानते हैं इट इज एन हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्यों, और क्योंकि ये जो ये फ्री एक्सपेंशन हो गया ये सडनली हो गया, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, आई होप कि ये जो ये कंसेप्ट्स ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूविंग अहेड, नाउ नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक हीट्स। We actually have the two specific heats. One is the specific heat at the constant pressure and specific heat at the constant volume. ठीक है। Now, moving ahead, so we are going to do the specific heat ahead. ठीक है। So I stop here. We'll see the things specific heat in the next lecture. Okay, I thank you very much.